Three, two, one. हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज करेंगे इकोसिस्टम. सो लेट्स बिगिन. An ecosystem can be visualized as functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding and physical environment. Ecosystem varies greatly in size from small pond to large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as global ecosystem as a composite of all local ecosystem on earth. Since this system is too big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. Forest, grassland, and desert are some examples of terrestrial ecosystem. Pond, lake, and wetlands, river, and estuaries are examples of aquatic ecosystem. Crop field and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि ecosystem can be visualized as functional unit of nature where living organisms interact among themselves and the surrounding with physical environment. Ecosystem का size vary कर सकता है, एक small pond भी हो सकता है और एक large forest भी या sea भी हो सकता है. Ecologists regard entire biosphere as global ecosystem. तो biosphere को उन्होंने बोला है as global ecosystem as a composite of all local ecosystem on earth. Since this system is too much big और ये वाला system बहुत बड़ा है and it is complex to be studied, उसको डिवाइड कर दिया two basic categories में, which is terrestrial and aquatic. Terrestrial के examples हैं forest, grasslands and desert, while aquatic के examples हैं pond, lake, wetland, river and estuaries. और ऐसे ही man-made ecosystem के examples आएंगे crop field and aquarium. So next, first we will look at the structure of ecosystem in order to appreciate input, that is productivity, transfer or energy, food chain, web, nutrient cycling, and output, that is degradation and energy loss. We will look at relationship cycles, chain webs that are created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship. तो यहाँ पर input से मतलब है productivity का, transfer of energy, that is food chain, food web or nutrient cycling, and output means degradation and energy loss, and cycles, chains, food webs, result of energy flow with the system and interrelationship we will study here. Ecosystem and ecosystem structure and function. In chapter 13, you have looked at various components of environment, biotic and abiotic. You studied how individual biotic and abiotic factors affect each other and the surrounding. Let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy take place within these components of ecosystem. Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives it species composition. Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. For example, trees occupy top vertical strata or layer of a forest, shrubs the second, herbs and grasses the bottom layer. The components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि when you looked at what various components of environment जैसे biotic and abiotic, तो हमने individual biotic and abiotic factors के बारे में पढ़ा with they affected each other and the surrounding. तो ये component in a more integrated manner में कैसे work करते हैं, how the flow of energy take place within the component of ecosystem, ये हम पढ़ेंगे इसमें. अब interaction of biotic and abiotic component, ये जब होता है तो क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसका फॉर्मेशन होता है. अब जो पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स इट स्पीशीज कॉम्पोजिशन. अब स्पीशीज के कॉम्पोजिशन के लिए हमें क्या देखना है, आइडेंटिफाई करना है, और इन्यूमरेशन हमें नंबर्स का कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफिकेशन. तो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. एग्जाम्पल जो ट्रीज हैं वो टॉप या वर्टिकल स्ट्रेटा ऑक्यूपाई करते हैं, शर्ब्स सेकंड लेयर फॉर्म करते हैं, हर्ब्स और ग्रासेस जो हैं वो बॉटम लेयर में आते हैं. नेक्स्ट बात है, component of ecosystem are seen to function when you consider the following aspect. अब following aspect में कौन कौन से हैं, productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. ये हैं aspects हमें चेक करने के लिए कि productivity क्या है. Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycle. To understand the ethos of an aquatic system, अब हमने aquatic system का example लेने के लिए हमने लिया एक small pond example. This is fairly self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem. A pond is shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibits. अब ये four basic component है, productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. अब हमने एग्जांपल लिया एक्वेटिक इकोसिस्टम का, इसमें लिया हमने पॉन्ड का. क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन भी होते हैं वो भी एक्वेटिक सिस्टम में, इसमें जो फोर बेसिक कंपोनेंट्स हमें पूरे दिखते हैं. नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विद ऑल डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ द पॉन्ड. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो इस इकोसिस्टम में है पॉन्ड के, वो है वाटर which contains dissolved inorganic and organic substances as well as rich soil deposit at the bottom of the pond. Solar input, cycles of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of entire pond.
The autotrophic component includes phytoplankton, some algae, and floating, submerged, and marginal plants found at the edges. Consumers are represented by zooplankton in the free-swimming and bottom-dwelling forms. The decomposers are fungi, bacteria, flagellates, especially abundant in bottom of the pond. This system performs all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotroph, consumption of the autotrophs by heterotroph, decomposition and mineralization of dead material to release back for reuse or by the autotrophs. These events repeated over and over. This is unidirectional movement of energy towards higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. अब जो बात करी है हमने कि सोलर इनपुट जो है एंड द साइकिल्स ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं एंटायर फंक्शन, द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड. द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं? फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी और साथ में फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एजेस. तो ये सारे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस. कंज्यूमर्स जो इसमें होते हैं वो है जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, fungi, flagellates, especially abundant in the bottom of the pond. This system performs all the function of an ecosystem and of biosphere as a whole, that is, conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotroph. यहाँ पर कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑर्गेनिक मटेरियल में. किसकी हेल्प से? रेडिएशन एनर्जी सन की हेल्प से. कौन करता है? ऑटोट्रॉफ. कंजप्शन कौन करता है इसका? कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेटरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ. ये जो इवेंट्स होते हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन. इट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हाई ट्रॉपिक लेवल एंड डेसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट. Next is productivity. A constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain. Primary productivity is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. It is expressed in the terms of weight, that is grams per meter square or kilocalorie per meter square. The rate of biomass produced is called productivity. So productivity, a constant input of solar energy, is the basic requirement. एक इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक कांस्टेंट सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन. इस प्रोडक्शन की यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. इस टर्म्स में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं और इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज इट इज एक्सप्रेस अ प्रोडक्टिविटी क्या था जो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर is could be productivity or kilocalorie per meter square per year is also called as productivity of different ecosystem. It can be divided into GPP, that is gross primary productivity, and NPP, that is net primary productivity. GPP of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plant in respiration. Gross primary productivity minus respiration loss R is net primary productivity, called NPP. That is GPP minus respiration losses is called as NPP. The net primary productivity NPP is available biomass for the consumption to heterotroph, that is herbivore and decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by the consumers. Primary productivity depends on plant species inhabiting a particular area. It also depends on the variety of environmental factors, availability of nutrients and photosynthetic capacity of the plant. Therefore, it varies in different type of ecosystem. The net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 billion tons. That is dry weight of organic matter. So, हमने पढ़ा था कि GPP और NPP के बारे में. तो GPP is gross primary productivity of an ecosystem, जो क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट की तो कितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसका जो रेट होता है हम उसे बोलते हैं GPP. अब GPP में से कुछ अमाउंट प्लांट्स ही यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो जो बचता है उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज NPP. तो NPP ही अवेलेबल होता है बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. अब जो ये न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है कंज्यूमर्स जो बनाते हैं उससे बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वॉज फॉर प्लांट्स
एंड फॉर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज बाय द कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता था? प्लांट की स्पीशीज पर इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, वो कौन से एरिया में रह रही है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कितना उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग होती है। क्यों? प्लांट की स्पीशीज अलग होगी, उसका एरिया अलग है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग है, न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं, प्लांट की कैपेसिटी, ये सारे अलग है। देयरफॉर देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो जो नेट एनुअल एक साल की जो नेट प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की, वो है 170 बिलियन टन्स, दैट इज ड्राइव। अब इस 170 बिलियन टन्स जो पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी है, उसमें से ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस की प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 बिलियन टन्स। रेस्ट कितनी है लैंड की? दैट इज 170 है टोटल बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी, 55 है उसमें से ओशंस की प्रोडक्टिविटी, तो नेट रिमेनिंग इज 115। ये किसकी है? लैंड की प्रोडक्ट। सो दिस इज बिकॉज they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening of soil। तो earthworm को हम farmers का friend बोलते हैं। Why? Because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening of soil। तो earthworm soil को lose करते हैं और जो complex organic matter होता है उसको break down करते हैं। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients and the process is called decomposition। अब बात करेंगे प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जिनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स रिमेन सच एज लीफ, बार्क, फ्लावर्स। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूड फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस विच इज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज डेट्राइटस। अब डेट्राइटस के अंदर क्या आते हैं? लीफ, बार्क, फ्लावर। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूड फीकल मैटर, इसको बोलते हैं डेट्राइटस, दैट इज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, अब स्टेप्स जो हैं, फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट स्टेप इज लीचिंग, नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, उसके नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन एंड द लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 इज लीचिंग, नंबर 3 कैटाबॉलिज्म, नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन एंड नंबर 5 इज मिनरलाइजेशन। अब जो बात करी हुई है डेट्रीवोर्स में अर्थवॉर्म एग्जांपल्स है। इट ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब फर्स्ट प्रोसेस जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें एग्जांपल किसका दिया हुआ है? अर्थवॉर्म का, जो ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस, दैट इज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज लीचिंग। लीचिंग में वाटर soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salt। अब लीचिंग के प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ चले जाते हैं? सॉइल के न्यूट्रिएंट सॉइल हॉरिजन में और गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। नेक्स्ट बताया हुआ है प्रोसेस कैटाबॉलिज्म के बारे में, जो करवाते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। तो बैक्टीरिया एंड फंगस एंजाइम को डिग्रेड करते हैं जो डेट्राइटस के अंदर होता है और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि दैट ऑल अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटस, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब जो 5 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन जो अर्थवॉर्म ने कराया है, सेकंड स्टेप इज लीचिंग जहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, थर्ड प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म जो बैक्टीरिया और फंगस करवाता है, एंड फोर्थ प्रोसेस जो है दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट प्रोसेस इन मिनरलाइजेशन। ये इन 5 स्टेप्स में से जो ये लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, इसके बारे में बोला हुआ है अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। तो जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो ये दोनों प्रोसेस तभी हो जाते हैं, दोनों प्रोसेस। और जो बाकी सारे प्रोसेस मिलाकर इसको बोला है दीज ऑल अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। तो ये वाले जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये ऑपरेट करते हैं अलग से किस पर? डेट्राइटस में, और जो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन वाला स्टेप है वो अलग से होता है। नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। ह्यूमिफिकेशन is the accumulation of dark amorphous substance called humus that is extremely resistant to microbial action and undergo decomposition at extremely low rate. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients. Humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients by the process known as mineralization। अब जो 4th स्टेप था दैट इज ह्यूमिफिकेशन, उसमें क्या होता है? ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है विच इज़ डार्क इन कलर एंड एमॉर्फस इन नेचर। अब ह्यूमस जो डार्क है कलर में, एमॉर्फस है नेचर में, वो माइक्रोब्स के एक्शन से रेजिस्टेंस है, उस पर माइक्रोब्स काम नहीं करते, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली लो रेट। अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जब ह्यूमस बन जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट पर होता है। ये कॉलॉइडल होता है नेचर में, देयरफॉर सर्व्स एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. अब mineralization के process में जो humus बनता है उसका degradation होता है some microbes की help से and release of inorganic nutrients by the process known as mineralization. Decomposition is largely oxygen requiring process. अब decomposition के लिए हमें oxygen बहुत require होती है. The rate is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. In particular, climatic condition decomposition rate is slower than if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugar. Temperature and soil moisture are most important factors, climatic factors that regulate composition through their effect on activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibits decomposition, resulting in buildup of organic matter. अब जो हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में, जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस की डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन क्या है और एंड क्लाइमेट के फैक्टर्स कैसे हैं. अगर डेट्राइटस की कंपोजिशन में लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है, वो ज़्यादा है, तो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो होगा. बट अगर नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज जैसे कि शुगर प्रेजेंट है डिकम्पोजिशन के अंदर, तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा क्विक होएगा. ऐसे ही टेम्परेचर और सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसके डिकम्पोजिशन को जो रेगुलेट करते हैं. अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट साथ में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है तो डिकम्पोजिशन बहुत हाई रेट पर होता है. बट इसके अपोजिट में अगर टेम्परेचर लो है और एनारोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल. नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो. Except for deep sea hydrothermal system, sun is the only source of energy of all ecosystem on earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation. अब जो PAR है, that is photosynthetically active radiation. ये क्या है? Of the incident solar radiation, less than 50% of it, ये जितनी भी solar radiation हमें sun से मिल रही है, उसका less than 50% जो है वो किसके लिए होता है? वो photosynthetically active होता है और जिसमें से प्लांट सिर्फ 2 to 10% ही यूटिलाइज करते हैं. तो आगे बोला है, वी नो दैट प्लांट and photosynthetic bacteria autotrophs fix sun radiant energy to make food from simple inorganic material. Plants capture only 2 to 10% of the PAR and this small amount of energy sustain the entire living world. So it is very important to know the solar energy captured by the plant flows through different organisms of an ecosystem. All the organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from sun to producers and then to consumers. तो PAR के बारे में ऑफ द जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन हमें मिलती है उसमें से लेस देन 50% जो होता है वो होता है PAR, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और उसमें से भी सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट कैप्चर करते हैं फॉर photosynthesis and this small amount of energy sustain the entire living world. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड पर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स. Further, ecosystems are not exempt from second law of thermodynamics. They need constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract universal tendency towards increasing disorderliness. अब बताया है कि इकोसिस्टम भी एक एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब उससे भी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की जिससे कि वो मॉलिक्यूल्स बना पाए फूड के लिए, टू काउंटरैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम हम उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोर्स एंड वुड प्लांट्स. तो मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हैं, वो है हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. ऐसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट. You have read the food chain and web that exist in nature. Starting from the plant or producer, food chain or rather web are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn is food for another. The chain or web is formed because of this interdependency. No energy that is trapped into an organism remains it forever. The energy trapped by the producer hence is either passed on to a consumer or on the organism dies. Death of organism is the beginning of detritus, food chain or web. All animals depend on plants directly or indirectly for their food needs, hence are called consumers and also called heterotrophs. If they feed on the producers, the plant, they are called primary consumers, and if the animal eat another animal, which in turn eats the plant or it produce, they are called secondary consumers. Likewise, you could have tertiary consumers too. Obviously, primary consumers will be herbivores. Some common herbivores are
insects, birds, and mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. The consumers that feed on the herbivores are carnivore, or more correctly primary carnivore, through secondary consumers. Those animals that depend on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivores. A simple grazing food chain is depicted below. Grass, which is a producer, is eaten by goat, which is a primary consumer, is eaten by man, which is a secondary consumer. Next is detritus food chain begins with organic matter. So it is made up of decomposers, which are heterotrophic organisms, mainly of fungi and bacteria. अब जो DFC है, that is detritus food chain, it begins with dead organic matter, which is made up of decomposers, which are heterotrophic organisms, mainly made up of fungus and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading simple organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs. अब सेप्रोट्रॉफ्स भी हम बोलते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं डिग्रेडिंग एनिमल्स से, तो हम इन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ. सेप्रो मीन्स टू डिकम्पोज. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material which subsequently absorbed by them. तो जो decomposers होते हैं वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे कि डेड और वेस्ट मटेरियल एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में फॉर्म हो जाए, जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. इन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी. अब उन्होंने बताया जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें GFC एक मेजर कंडक्ट है एनर्जी फ्लो का. एज अगेंस्ट दिस जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है have a much larger fraction of energy flows in detritus food chain than through GFC. तो जब बात करी हुई है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल में जो मेन फ्लो होता है एनर्जी का इज़ फ्रॉम GFC. अब GFC का फ्लो क्यों होता है? क्योंकि बहुत लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ से फ्लो होती है? detritus food chain से, देन थ्रू GFC. detritus food chain may be connected with GFC at some level. Some of the organisms of DFC, that is detritus food chain, are prey to GFC animal and in natural ecosystem. Some animals like cockroach, crows, etc. तो जैसे कॉकरोच और क्रो हैं ये सम ऑफ दी DFC का पार्ट हैं क्योंकि वो डिकम्पोजर्स हैं, तो ये प्रे बन जाते हैं GFC का ग्रेजिंग फूड चेन का एक नेचुरल इकोसिस्टम में. तो इसलिए बोला है detritus food chain may be connected with grazing food chain at some levels. तो ये जो हैं वो omnivores हैं. These natural interconnection of food chain make a food web. Organisms occupy a place in natural ecosystem or in community according to their feeding relationship with other organisms. Based on food of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. Producers belong to first trophic level, herbivores are primary consumers to second, and carnivore or secondary consumers to the third. मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ पर आएंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर. दे आर प्रोड्यूसर्स, उसके एग्जांपल्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज. ऐसे ही जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो आएंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर. इसके एग्जांपल है जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड काउ. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, जिन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर. एग्जांपल्स इज बर्ड्स, फिशेस एंड वुल्व्स. लास्ट में जो है दैट इज कंज्यूमर्स, दे आर टॉप कार्निवोर that comes in fourth trophic level. Examples is man and lion. Next, the important point to note is that the amount of energy decreases at the successive trophic level. तो धीरे धीरे जैसे नीचे उसमें ऊपर जाते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर, तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है. When any organism dies, it is converted into detritus or dead biomass that serves as energy source for decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demand. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो डेट्राइटस या फिर डेड बायोमास में चेंज हो जाता है, जो कि एनर्जी का सोर्स होता है डिकम्पोजर्स के लिए. ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं उसके लोअर ट्रॉफिक लेवल पर फॉर देयर एनर्जी डिमांड. Each trophic level has certain mass of living material at a particular time, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो एक पर्टिकुलर मास होता है लिविंग मटेरियल का, उस पर्टिकुलर टाइम में उसे बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप. और स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर में या जितने मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसे हम बायोमास कहते हैं, उसे बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप.
the biomass of a species is expressed in terms of dry और wet, dry और fresh weight. तो ये बायोमास हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेश या ड्राई वेट में. तो मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट. हम ड्राई वेट को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेश वेट. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% law. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels: producers, herbivores, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. अब उन्होंने बोला है कि नंबर जो होते हैं ट्रॉफिक लेवल के एक ग्रेजिंग फूड चेन में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसको फॉलो करता है? 10% लॉ को. 10% लॉ क्या कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में लोअर ट्रॉफिक लेवल से. तो नेचर में इतने सारे लेवल्स नहीं पॉसिबल हैं. इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल. प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, मतलब प्रोड्यूसर से जब हर्बीवोर में एनर्जी जाएगी तो सिर्फ इसकी 10% जाएगी. ऐसे ही हर्बीवोर से जब प्राइमरी कार्निवोर के पास एनर्जी आएगी तो हर्बीवोर की सिर्फ 10% होगी. अब जब कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर में एनर्जी आएगी तो वो इसकी सिर्फ 10% जाएगी. नेक्स्ट दिया हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड. द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड इट इज़ नैरो टूवर्ड्स एपेक्स. तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वो वहाँ पर वो नैरो हो जाता है उसके एपेक्स पर. तो नैरो टूवर्ड्स एपेक्स. वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. तो हम ऐसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, नंबर पर, बायोमास पर और एनर्जी पर. तो ये जो 3 टाइप्स के बन सकते हैं रिलेशनशिप, इन सब को हम बोलते हैं पिरामिड. इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और जो एपेक्स पर वो नैरो हो जाता है. नेक्स्ट अब बताया हुआ है द बेस ऑफ ईच पिरामिड. अब जो भी पिरामिड है, जैसे ये वाला पिरामिड है, तो इसका जो बेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर्स को. हमेशा प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो बेस पर आएंगे. नेक्स्ट द रिलेशन बेस और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल जो एपेक्स पर होगा वो हमेशा क्या होंगे? टॉप लेवल कंज्यूमर्स. यहाँ पे टॉप लेवल कंज्यूमर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं एपेक्स पर, और बेस पर आएंगे प्रोड्यूसर्स. तो 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन से हैं? नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. अब ये वाला जो हमें दे रखा है दैट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो उसमें बताया हुआ है ओनली 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स. कि अगर 6 मिलियन प्लांट हैं तो जो टॉप कार्निवोर होंगे वो कितने होंगे? 3. ओनली 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड ऑन 6 मिलियन प्लांट्स. तो ये जो है वो किसका है? पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. नेक्स्ट जो पिरामिड दिया हुआ है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास विच शोज शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पर जो डिक्रीज है बहुत ज़्यादा हुआ है. दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton. तो अब ये जो ग्राफ है ये भी बायोमास का ही पिरामिड है, वो इन्वर्टेड शेप का है. इसमें बताया हुआ है कि स्मॉल स्टैंडिंग जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका जो बायोमास है बहुत कम है एज कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन्स विच सपोर्ट्स स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स. Next is an ideal pyramid of energy observes that primary producers convert 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP. कि जितनी भी सनलाइट अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर्स को वो उसका सिर्फ 1% ही कन्वर्ट करते हैं और उनको NPP की फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो ये जो है इट इज़ एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. नेक्स्ट बताया है एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल. नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ ओनली a few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that trophic level represent a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one trophic level in same ecosystem at the same time. For example, sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruit, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms. तो आप बताया हुआ है जैसे स्पैरो है वो एक प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है. प्राइमरी कंज्यूमर्स कब? जब वो प्लांट के प्रोडक्ट सीड, फ्रूट्स और पीस को खाएगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर कब होगी? जब वो इंसेक्ट एंड वर्म्स को खाएगी. तो इसलिए बोला हुआ है एनी ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल. यहाँ पे जो स्पैरो है वो मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रही है. तो रिमेंबर दैट ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल. ये सिर्फ एक फंक्शन को डिसाइड करता है, ना कि एक स्पीशीज को. अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. नेक्स्ट इज इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. तो मैक्सिमम इकोसिस्टम में क्या होगा? एनर्जी का भी, नंबर का भी और बायोमास का भी पिरामिड अपराइट होगा. और प्रोड्यूसर्स
क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे नंबर में, एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर इन बायोमास देन कार्निवोर। ऑल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन हायर ट्रॉफिक लेवल। तो मैक्सिमम इकोसिस्टम में अपराइट बनेगा, क्यों बनेगा, जब प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो ज़्यादा होते हैं नंबर में, उनका बायोमास होता है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। ऐसे ही हर्बीवोर्स का नंबर और बायोमास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर लेवल, एनर्जी जो लोअर लेवल पे होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हायर लेवल। The pyramid of biomass in sea is generally inverted because biomass of fishes far exceeds the phytoplankton. अब जो एक्सेप्शन गिवन है वो है बायोमास में, कहाँ पर, सी में। यहाँ पर जो फिशेस का बायोमास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पर जो पिरामिड है बायोमास का सी के अंदर वो अपराइट ना होके कैसा हो जाता है, वो इन्वर्टेड हो जाता है। वाई? बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस इज़ फार ग्रेटर देन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपराइट रहता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट, हमेशा लॉस्ट होगी एज हीट इन ईच स्टेप। ईच पार्ट इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट द गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। तो हर एक जो बार हुआ है एनर्जी पिरामिड में वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है उस ट्रॉफिक लेवल में उस पर्टिकुलर टाइम में, एनुअली पर ईयर पर यूनिट एरिया। Next is, however, there are certain limitations of ecological pyramids, such as अब limitations बताई हुई है कौन सी, does not take account of same species belonging to two or more trophic level. It assumes a simple food chain, sometimes that almost never exists in the nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids, even though they play a vital role in ecosystem. तो limitations जो बताई हुई है ecological pyramids की, पहली limitations है कि ये दो या उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को जो अकाउंट कर रहे हैं सेम स्पीशीज़, उसको वो कंसीडर नहीं करता है। अगर एक ही स्पीशीज़ दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में आते हैं तो उसको वो कंसीडर नहीं करता है। एक को सिंपल फूड चेन सोचकर ही पिरामिड बनाया जाता है, दैट ऑलमोस्ट जो कभी जनरली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, कोई भी फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता है। ऑल्सो सेकंड जो लिमिटेशन है वो है सेप्रोफाइट्स के बारे में। सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दी गई है, जबकि वो नेचर में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। Next is ecological succession. You have learned in chapter 13 the characteristics of population and community are also their response to environment and how such responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. An important characteristic of all communities is that their composition structure constantly change in the response to the changing environment. This change is orderly and sequential, parallel with the change in the physical environment. These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and क्या है, अब जो बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, एक है कॉम्पोजिशन एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। कॉन्स्टेंटली चेंज रिस्पॉन्स, ये क्यों चेंज होता है उसका कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि रेगुलर चेंज होता है रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ये जो चेंज होता है ऑर्डरली होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है और पैरेलल होता है विद द चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उससे जो चेंज एक उसके कॉम्पोजिशन और कम्युनिटी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर में आता है उस कम्युनिटी के, वो ऑर्डरली होता है, सिक्वेंशियल होता है और पैरेलल होता है। दीज चेंजेस फाइनली लीड टू नियर इक्विलिब्रियम with the environment that is called climax community. अब ये जो चेंजेस होते हैं ये किस में लीड करते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है एनवायरनमेंट के साथ। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे धीरे धीरे जो फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं उस स्पीशीज़ की कॉम्पोजिशन में उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस सक्सेशन में सम स्पीशीज कॉलोनाइज इन एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस वाइल सम ऑफ द अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपीयर। तो ड्यूरिंग दिस कुछ तो डिसअपीयर हो जाएंगे और कुछ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे पर्टिकुलर एरिया में। तो इस सीक्वेंस को जो ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया, तो ये जो सीक्वेंस है इसे बोला जाता है सेल। Next is the individual transitional communities are termed as serial stages or serial communities. In successive serial stages, there is a change in diversity of species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in total biomass. तो इस successive serial stages में क्या होता है, जिसे हम serial communities भी बोलते हैं, change होता है diversity of organism में और क्या increase होता है number of species as well as increase in total biomass. Next is present day communities in the world have come to be because of succession that are
that has controlled over million of years since life started on earth. Actually succession and evolution would have been parallel process at that time. तो उस टाइम के बारे में बताया हुआ है, तब सक्सेशन और एवोल्यूशन एक पैरेलल प्रोसेस था. आज की कम्युनिटीज़ में इट हैव बिकम बिकॉज ऑफ सक्सेशन एंड अकर. तो ये जो सक्सेशन हुआ वो मिलियन ऑफ ईयर्स में हुआ था जब लाइफ स्टार्ट हुई थी. उसके बाद सक्सेशन इसलिए क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया जहाँ पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. दीज कुड बी एरियाज विद नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड. जैसे कि एग्जाम्पल है बेयर रॉक्स, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड हियर. तो ऐसे जैसे बेयर रॉक्स जहाँ पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. और उसके बाद वाले एरिया जहाँ पर उसने लॉस्ट कर दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक टाइम पर रहते थे ऑर्गेनिज्म पर अब नहीं रह रहे हैं, उसमें सक्सेशन आना उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन आर न्यूली कोल्ड लावा, बेयर रॉक. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी इज जनरली स्लो. Before biotic community of diverse organisms can become established, there must be a soil. Depending mostly on climate, it takes natural process several hundred to several thousand of years to produce fertile soil on bare rocks. तो न्यू बायोटिक कम्युनिटी को डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है. ये प्रोसेस जनरली स्लो होता है. तो बिफोर बायोटिक कम्युनिटी क्या बननी चाहिए, सॉइल प्रेजेंट होनी चाहिए, और डिपेंड क्लाइमेट पर करता है. और नेचुरल प्रोसेस जनरली सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसमें टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक्स. Next is secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as in abundant farmland, burned or cut forest, land that had been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. तो secondary succession के बारे में बताया हुआ है. वो कहाँ पर होता है, एक natural biotic community में होता है जहाँ पर ये वाली community destroy हो चुकी होती है, like abandoned farmland, burnt or cut forest, लैंड दैट हैड बीन फ्लडेड. तो ऐसे रीजन जहाँ पर एक टाइम पर पहले नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी प्रेजेंट थी, वहाँ पर सक्सेशन एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन वो जल्दी होगा. क्यों? क्योंकि सम सॉइल्स और सेडिमेंट्स वो प्रेजेंट होंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन. हाउएवर दिस वेजिटेशन चेंजेस इन टर्न affected food and shelter of various types of animals. Thus succession proceeds, the number and type of animals and decomposers also changes. तो जैसे जैसे ये सक्सेशन होता है वेजिटेटिव चेंजेस आते हैं जो क्या इफेक्ट करते हैं, फूड और शेल्टर इफेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को. तो सक्सेशन प्रोसीड करता है, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स, डिकम्पोजर्स वो वहाँ के चेंज हो जाते हैं. At that time, during primary succession and secondary succession, natural or human-induced disturbances, fire or deforestation can convert particular serial stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. तो इस टाइम पर ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन कोई भी अगर नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस होती है, जैसे फायर हो बाय नेचुरल एंड ह्यूमन की तरफ से डिफॉरेस्टेशन, तो पर्टिकुलर सीरियल स्टेज जो होती है वो पहले जैसे ही कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पर such disturbances could create new conditions. तो इस न्यू कंडीशन में कुछ स्पीशीज़ ग्रो करेंगे, उनको encourage करा जाएगा, और बाकी डिस्करेज या एलिमिनेट हो जाएंगे. सक्सेशन ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, वेदर इट इज़ वाटर, अगर वाटर का होगा, या फिर वेटलैंड्स होंगे तो उसे बोलते हैं हाइड्राज, और अगर जो जीरल है वो होता है ड्राई स्टेजेस पर. तो बोला है वेदर इट इज़ ऑन वाटर और वेट एरियाज or it is on very dry area, succession is called hydrage or zirage. Hydrage take place in wet areas and successional serial process from hydric to mesic conditions. तो अगर hydric condition होंगी कहाँ पर हाइड्राज सक्सेशन इन वेट एरिया, तो वो भी कहाँ शिफ्ट करेगा, म्यूजिक में कंडीशन में. और ऐसे ही अगर जिराज कंडीशंस हैं ड्राई एरिया में, वो भी कहाँ शिफ्ट करेगा, म्यूजिक में. तो जेरिक टू म्यूजिक कंडीशंस और ऐसे ही हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन. तो बोथ हाइड्राज एंड जिराज लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, जिसे हमने म्यूजिक कंडीशन बोला. दैट इज़ नाइदर टू ड्राई जेरिक और नाइदर टू वेट, दैट इज हाइड्रिक. इनके बीच की जो स्टेज होती है इसे बोलते हैं म्यूजिक कंडीशन. द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड पाइनियर स्पीशीज. तो ऐसी स्पीशीज जो फर्स्ट टाइम उस एरिया में आती है उसे बोलते हैं पाइनियर. इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली लाइकन्स. तो प्राइमरी सक्सेशन अगर रॉक पर हो रहा है, मतलब अगर जिराज कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, लाइकन्स आएंगे सबसे पहले, which are able to secrete acid to dissolve the rocks. Rocks को dissolve कर देंगे acid secrete करके, help in weathering and soil formation. These later pave way to some small plants like bryophytes, which are able to hold and in small amount of soil. They are with time succeeded by higher plants and after more stages ultimately to stable climax community. तो यहाँ पे जो climax community बनती है वो होती है forest. The climax community remains stable for long as environment remain unchanged. With the time, the xerophytic habitat
gets converted to mesophytic one. In primary succession, water, और वाटर में क्या होता है, सबसे पाइनियर जो स्पीशीज सबसे पहले जो आती है वो होते हैं छोटे छोटे स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन विच आर रिप्लेस्ड बाय, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आते हैं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, उससे बनेंगे रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रीड स्वैम्प, फिर मार्श मीडो, देन स्क्रब और फाइनली ट्रीज. द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट. हम यहाँ पर भी फॉरेस्ट बन जाएगा, मतलब अगर ज़िरिच होगा तब भी, हाइड्राश होगा तब भी, ज़ेरिक होगा तब भी, जो अल्टीमेट क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है वो क्या बनती है, फॉरेस्ट की. विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड. In secondary succession, the species that invade depend on the condition of soil, availability of water, environment, as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, rate of succession is much faster, climax is also reached more quickly. तो जो प्राइमरी सक्सेशन वाटर में था उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आएंगे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड सबमर्ज्ड के बाद आएंगे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग के बाद आते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग से बनेंगे रीड स्वाम्प, रीड स्वाम्प से बनते हैं मार्श मीडो, और मार्श मीडो से स्क्रब, और स्क्रब से फाइनली फॉरेस्ट. और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन कैसी है सॉइल की, वाटर कितना अवेलेबल है, एनवायरनमेंट कंडीशन कैसी है, प्रोपेग्यूल्स या सीड वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं. तो यहाँ पे क्लाइमैक्स और ये सब बहुत जल्दी आ जाएंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन, इज वेरी स्लो, टेकिंग मे बी thousands of years for climax to reach. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in land or water, proceed to similar climax community, the mesozoic. तो जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें सबसे पहला दिया हुआ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से बनते हैं सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट से बन रहे हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग से हैं रीड स्वैम्प, रीड स्वैम्प से मार्श मीडो, से स्क्रब, और स्क्रब से फॉरेस्ट. Next is nutrient cycling. You have studied in class 11 that organisms need a constant supply of nutrient to grow, reproduce and regulate various body function. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at the given time is referred to as standing state. It varies in different kind of ecosystem and also on seasonal basis. तो जो standing state है वो क्या है, the amount of nutrients, उस न्यूट्रिएंट में क्या आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रेजेंट हैं उस सॉइल में उस पर्टिकुलर टाइम में, उसे बोला जाता है स्टैंडिंग स्टेट, जो वेरी करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम में एंड ऑल्सो ऑन द सीजनल बेसिस. मतलब हर इकोसिस्टम का एक डिफरेंट सीजनल स्टैंडिंग स्टेट होगा और हर एक सीजन में भी अलग स्टैंडिंग स्टेट होगा. Next is what is important to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely. The movement of nutrient elements through the various component of ecosystem is called nutrient cycling. तो इन जो nutrients होते हैं इन सब elements का अलग अलग components में जाना ecosystem के, उसका जो movement होता है उसे बोलते हैं nutrient cycling. Another name is biogeochemical cycle. Bio refers to living organism, geo is rocks, air, water. Nutrient cycling are of two types. First is gaseous and second is sedimentary. तो two type के nutrient cycling है, that is gaseous and sedimentary. The reservoir for gaseous of nutrient cycle, gaseous का जो nutrient cycle example नाइट्रोजन और कार्बन cycle, that is कार्बन, नाइट्रोजन, ये किसके हैं, gaseous के example, CNG, कार्बन और नाइट्रोजन ये किस में आएंगे, gaseous nutrient cycle में exist in the atmosphere. and for sedimentary, अब sedimentary के example हैं सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस, ये आते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में, SPS. तो सल्फर और फॉस्फोरस कम्स इन सेडिमेंट्री, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इन gaseous cycle. The example is sulfur and phosphorus cycle. The nutrient, the reservoir is located in earth crust. तो इसका जो reservoir है वो earth crust में होता है. Environment factors such as soil, moisture, pH, temperature regulate the rate of release of nutrient into the atmosphere. The function of reservoir is to meet the deficient with the deficient which occurs due to as soil, moisture, pH, temperature, etc. They regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. The function of reservoir is to meet the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux. रिजर्वायर का फंक्शन होता है उस डेफिशिएंसी को मीट करना जो इम्बैलेंस की वजह से आई थी इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स. और जो फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर सॉइल, मॉइस्चर, pH, temperature, regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. Next is ecosystem carbon cycle. Ecosystem carbon cycle. When you study the composition of living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism and is next only to water. If we look at total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in oceans. This oceanic reservoir regulates the amount of carbon dioxide in atmosphere.
Fossil fuels represent a reservoir of carbon. Cycling occurs through atmosphere, ocean, and through living and dead organisms. According to one estimate, 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis. A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as carbon dioxide through respiratory activities of the producers and consumers. Decomposers also contribute substantially to carbon dioxide pool by their processing of waste material and dead organic matter of land or ocean. Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Burning of wood, forest fire, and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source for releasing carbon dioxide in the atmosphere. Human activities have significant influence the carbon cycle. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere. तो यहाँ पे कार्बन साइकिल में हमें बताया कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टू द वाटर. 71% ऑफ कार्बन इज डिजॉल्व इन ओशंस में 71% कार्बन होता है और दिस ओशनिक रिजर्वर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो रिजर्वर होते हैं कार्बन के. कार्बन साइकिलिंग एटमॉस्फेयर के थ्रू, ओशंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म होती है. एक एस्टिमेट जो था उसमें था 4 into 10 to the power 13 kg कार्बन ये फिक्स होता है एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस. अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज. तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में दोबारा जाता है. डिकम्पोजर्स भी एक बहुत बड़े पूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ लैंड एंड ओशंस. तो कुछ अमाउंट जो होता है ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स and removed from circulation. Burning of wood में forest fire, combustion of organic material, forest fuel, volcanic activity, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. ह्यूमंस की जो एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इन सब से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न हो जाती है एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस साइकिल. Phosphorus is major constituent of biological membrane, nucleic acid, and cellular energy transfer system. Many animals also need large quantities of this element to make shells, bones, and teeth. Natural reservoir of phosphorus is rock, which contain phosphorus in the form of phosphates. When rocks are weathered, minute amount of these phosphates are dissolved in soil solution and are absorbed by the roots of the plant. तो phosphorus का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पर मिलता है हमें, वो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लिक एसिड्स में और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में. ये बहुत सारे एनिमल्स इसकी नीड होती है कि इसमें शेल्स बनाने के लिए, बोन्स में और टीथ में. नेचुरल रिजर्वर फॉस्फोरस का है वो है रॉक, जहाँ पे ये फॉस्फेट फॉर्म में मिलता है. जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो इसका माइन्यूट अमाउंट है फॉस्फेट्स का, वो सॉइल सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है और रूट्स प्लांट की एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हर्बीवोर्स एंड other animals obtain this element from the plant. अब प्लांट्स में से किसके पास आ गए, हर्बीवोर्स के पास और अदर एनिमल्स के पास. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस. अब कार्बन साइकिल में रेस्पिरेटरी लॉस रिलीज होता था, पर यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है फॉस्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर के अंदर. तो ये डिफरेंस है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में. द अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल इज फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स. तो पहला जो डिफरेंस है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में वो है एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस साइकिल का रेनफॉल की वजह से बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन इनपुट. दूसरा जो रीज़न है दैट इज गैशियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल. तो एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिज्म में कोई भी फॉस्फोरस का एक्सचेंज नहीं होता है. और जो रेनफॉल के प्रोसेस से हमें फॉस्फोरस का जो इनपुट होता है वो भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन साइकिल. जबकि कार्बन साइकिल में जो एनर्जी इनपुट होता है रेनफॉल के थ्रू वो बहुत ज़्यादा होता है कार्बन साइकिल में, और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म में भी एक्सचेंज होता है कार्बन साइकिल में. तो ये दो डिफरेंसेस हैं कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में. अब ये हमें सिंप्लीफाइड मॉडल दे रखा है फॉस्फोरस साइकिल का, किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. तो पहले रॉक होता है, उसकी वेदरिंग होगी, वो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा फॉस्फोरस. अब जैसे ही वो सॉइल में आ जाएगा फॉस्फेट की फॉर्म में, और यहाँ से अपटेक कौन करेंगे, प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स की रूट्स की फॉर्म, रूट्स से प्लांट्स जो हैं वो ले लेंगे, और प्लांट्स को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर्स जब डेड हो जाएंगे वो डेट्राइटस के फॉर्म में सॉइल सॉल्यूशन के अंदर दोबारा चला जाएगा, या प्लांट का ही जो लिटर होगा वो भी सॉइल सॉल्यूशन में दोबारा फॉस्फेट की फॉर्म में आ जाएगा फॉस्फोरस साइकिल में. Next is ecosystem services. Healthy ecosystem are based on a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and services. These processes are named as ecosystem services. तो ecosystem services में पहला आता है economic, environmental and aesthetic goods and services. तो ये जो हैं
इनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जांपल्स आर हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्योरीफाई एयर एंड वाटर, माइग्रेट droughts and floods, cycle nutrients, generate fertile soil, provide wildlife habitats, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, and provide aesthetic, cultural, and spiritual values through values of such services of biodiversity is difficult to determine. It seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. अब जो बात करिए इकोसिस्टम सर्विसेज के एग्जांपल्स दिए हैं क्या कि वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, हमें वाटर देते हैं, तो उसकी वजह से ड्रॉट और फ्लड कॉज होती है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, जनरेट करता है फर्टाइल सॉइल्स, प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, पॉलिनेशन होता है क्रॉप्स की, स्टोरेज साइट होती है कार्बन, एंड प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये सारे हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इन सब की जो वैल्यू है, इन सब सर्विसेज की बायोडाइवर्सिटी की, इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि उस बायोडाइवर्सिटी का कोई प्राइस टैग होना चाहिए। Robert Constanza and his colleagues have recently tried to put a प्राइस टैग्स। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने और उनके कलीग्स ने मिलकर इस नेचर के सर्विसेज पर प्राइस टैग लगाया था। रिसर्चर्स हैव पुट ऑन एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 ट्रिलियन ईयर, मतलब 1 ईयर की जो कॉस्ट है दैट इज 33 ट्रिलियन फॉर दी सर्विसेज ऑन द फंडामेंटल सर्विसेज विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल gross product national product that is GNP which is $18 trillion। तो इसका जो US डॉलर की GNP है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहाँ का जो 18 ट्रिलियन अमाउंट है उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट इज 33 ट्रिलियन पर ईयर कॉस्ट है नेचर की सर्विसेज की। ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, अब जो खाली इन जो कॉस्ट है इस कॉस्ट में से सॉइल के फॉर्मेशन की ही 50% कॉस्ट है। कंट्रीब्यूट्स ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10%। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इज अबाउट 6% ईच। तो अब इसमें पूरी कॉस्ट बताई हुई है कि इस 33 ट्रिलियन में से 50% से भी ज़्यादा जो है दैट इज़ फॉर सॉइल फॉर्मेशन, लेस देन 10% इज़ फॉर recreation and nutrient cycling, and about 6% is for climate regulation and wildlife for habitat. Last summary, an ecosystem is a structural and functional unit of nature and it comprises of abiotic and biotic component. Abiotic components are inorganic material, air, water and soil, whereas biotic components are producers, consumers and decomposers. Each ecosystem has characteristic physical structure resulting from interaction amongst abiotic and biotic components. Species composition and stratification are two main features of an ecosystem. तो species का composition और stratification ये दो main structural features हैं एक ecosystem के। Based on the source of nutrition, every organism occupy a place in an ecosystem. Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling are 4 components of an ecosystem. तो ecosystem के जो components थे, first was productivity, second is decomposition, third is energy flow and fourth is nutrient cycle। और स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन ये दो हैं स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। और कंपोनेंट्स में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कितना कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को और फिर बायोमास प्रोडक्शन कितना करते हैं उसे बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 2 टाइप्स की होती है, GNP एंड NNP। GNP इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड NNP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड GNP। अब कितना रेट पर वो कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को और उस रेट से वो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है उसको बोलते हैं GPP। और NPP इज रिमेनिंग बायोमास और एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब जो ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर उसमें से उनका खुद यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन में करने के बाद जो बायोमास लेफ्ट होता है प्रोड्यूसर्स का उसे बोला जाता है NPP। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर्स। तो इस जो NPP को जब कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स इसे बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इन डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ detritus are converted to carbon dioxide, water and inorganic nutrients by decomposers. Decomposition involves 3 processes, namely fragmentation of detritus, leaching and catabolism। तो ये 3 प्रोसेस अलग चलते हैं, बाकी 2 प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ये भी अलग चलते हैं। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। फर्स्ट plants capture solar energy and then food is transferred from producers to decomposers. Organisms of different trophic level in nature are connected to each other for food or energy relationship, forming a food chain. The storage and movement of nutrient elements through the various components of the ecosystem is called nutrient cycling. Nutrients are repeatedly used through this process. Nutrient cycling are of 2 types as CNG, carbon, nitrogen,
comes under gaseous and sulfur phosphorus come under sediment cycle. Atmosphere or hydrosphere is the reservoir of the gaseous cycle, that is of carbon, whereas earth crust or rocks are the reservoir for sedimentary type, that is phosphorus. Products of ecosystem processes are called as ecosystem services, example purification of air, water by forest. The biotic community is dynamic and undergoes changes with the passage of time. These are sequentially ordered and constitute ecological succession. This succession begins with invasion of bare lifeless areas by pioneer. अब pioneer lichens होते हैं ज़िराज वाले environment में और हाइड्राज के environment में होते हैं phytoplanktons, which pave the way for the successor, and ultimately stable climax community is formed. Climax community remains stable as long as environment remains unchanged.